Hello students, I hope you all are fine. Students, in last worksheet of English and video, I was explain you the new chapter, that was the bubble, the straw and the shoe. Okay, so in this chapter, first we will read this chapter, and after that once again I will explain you the summary of this chapter. Okay, once I will explain you the summary, you will be listen properly, and then I will ask you some questions and you will answer that questions. Okay students, so let's start. First we will read this chapter, this story. Okay, how you will read the spellings and all. Okay, let's start. The name of the chapter is the bubble. Okay, the sat raw straw and स्टूडेंट्स, मैं वॉबल के साथ आपको रीडिंग करवा रही हूँ, ठीक है? तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है. द शू. ओके, शू और द जो है वो साइड वर्ड्स हैं, इसको हम इसी तरह से पढ़ेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. once, ONCE, once. okay students, there are some sight words in this chapter. तो उनके फोनिक्स में उनकी साउंड नहीं बनती है, तो हमें उन्हें उसी तरह से रीड करना है जैसे मैं आपको रीडिंग कराऊंगी. और जहाँ पर फोनिक्स की साउंड बनेगी मैं वहाँ पर आपको फोनिक्स के साथ ही रीड करवाऊंगी. ओके, जैसे ONCE, once. अ प, यू सेज अ, पी सेज प. अप, on, up, on, upon. once upon a. time. There is a sight word. Okay, you did the sight words in KG class, you know that? Yes. THERE, there. Lived. A bubble. A straw and a shoe. Full stop. Okay, once again. Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. ONE, one. ड ए वाई की साउंड को ए पढ़ते हैं, डी की साउंड को ड बोलते हैं, ठीक है? तो ड ए डे. द ए दे. व एंड ट वेंट. इन टू. इन TO2, into. द forest, for EST, forest. Okay, full stop. तो one day they were and went into the forest. Full stop. they came. TO2, river. They came to a river. They did. Not. KNOW, no. Okay, ow. OW की साउंड क्या है? आओ. आपने काउ के स्पेलिंग पढ़े थे ना, तो उसमें भी ने आपको सिखाया था कि आओ की साउंड, OW की साउंड होती है आओ. तो H की साउंड होगी ह, आओ, हाउ. टू. C says क, R says र, O says ओ, S स. ठीक है? तो क, र, ओ, स.
cross, cross, eat, it, full stop. तो they came to a river, full stop. They did ought not know how to cross it. Next, the, the, shoe, said, aid, aid, said, the shoe said. Bubble, let, us, float, float, on, you. Bubble, let's float, let us float on you. Next is no, shoe, let, set, straw, stretched, stretched, him, self, himself, fur, from, on, bank, to, the, other, no shoe, let straw stretch himself from one bank to the other. The and then, we, and can, cross, the, river, full stop. Then we can cross the river. So the straw stretched, himself, from one bank to the other. So the straw stretched himself from one bank to the other. And when the shoe jumped on the straw. When the shoe jumped on the straw, it broke. It broke. The shoe fell. Into the water. With a loud. OU की साउंड है आउ और डी की साउंड है ड. loud. सप, ash, splash, full stop. The shoe fell into the water with a loud splash. The bubble, shook, double o, long sound of u. K says k, shook,
shook, and shook, shook with laughter, 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 and burst, burst with a big bang. The bubble shook and shook with laughter and burst with a big bang. So this is the story we read. Now once again I will explain you the summary. What is the story about? ये स्टोरी किसके बारे में है? I will explain you the summary. This story about three friends. This story is about three friends. Who are the three friends? The bubble, okay, the straw and the shoe. Bubble, straw and shoe. These were the three friends, okay. One day they were passing through a forest. एक दिन वो एक जंगल से गुजर रहे थे. पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट मीन्स जंगल से गुजर रहे थे, या वन डे वो एक जंगल में गए. ओके, दे केम नियर टू अ रिवर. तो वहाँ पर क्या हुआ, वो एक नदी के पास गए. एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट. वो नहीं जानते थे कि उस नदी को कैसे क्रॉस करना है. तो फाइनली they decided to cross the river with the help of straw. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? फर्स्ट तो उन्होंने शू से बोला कि फर्स्ट शू ने बबल से कहा कि हम आपके ऊपर तैर के नदी को क्रॉस करते हैं. तो बबल ने क्या किया? बबल ने मना कर दिया, नो. ओके, बबल ने क्या बोला? नो. बबल ने बोला नो. देन शू ने बोला कि ओके. तो उसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया? दे फाइनली दे डिसाइडेड टू क्रॉस द रिवर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, हम जो रिवर कैसे क्रॉस करेंगे? स्ट्रॉ की हेल्प से क्रॉस करेंगे. तो उन्होंने स्ट्रॉ को बोला हमारी हेल्प करने के लिए. ओके, द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड इटसेल्फ फ्रॉम वन साइड ऑफ द बैंक टू द अदर. तो जब स्ट्रॉ उनकी हेल्प के लिए रेडी हो गया तो स्ट्रॉ ने क्या किया? रिवर के वन बैंक मतलब एक किनारे से अदर बैंक दूसरे किनारे तक अपने आप को स्ट्रेच किया. स्ट्रेच मीन्स फैलाया. ठीक है, तो उसने अपने आप को एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला लिया. द स्ट्रॉ स्ट्रेच इटसेल्फ फ्रॉम वन साइड ऑफ द बैंक टू द अदर. नाउ व्हाट हैपेंड? द शू ट्राई टू क्रॉस द रिवर फर्स्ट. तो शू था वो पहले रिवर को क्रॉस करना चाहता था. तो उसने क्या किया? द शू लैंडेड ऑन द स्ट्रॉ एंड ब्रोक इट. तो शू ने सोचा कि सबसे पहले मैं ही रिवर को क्रॉस करूँगा. तो उसने जैसे ही स्ट्रॉ के ऊपर जंप किया या उस पर लैंड किया तो क्या हुआ? वो स्ट्रॉ जो थी वो बीच से टूट गई. एज यू सी इन द पिक्चर, द स्ट्रॉ जो थी वो बीच से टूट गई और शू जो था वो पानी में गिर गया विद अ लॉर्ड स्प्लैश. जैसे ही शू पानी में गिरा तो पानी में जब कुछ हम फेंकते हैं तो कैसे छपाक की आवाज़ आती है, दैट इज द साउंड ऑफ स्प्लैश. ओके, लाउड स्प्लैश. तो वैसी ही आवाज़ आई जब शूज पानी में गिरा. ओके, देन द बबल शुक and shook with laughter and burst big bang. तो bubble shook with laughter and burst in a big round. तो जब वो शूज पानी में गिरा तो उसको देखकर जो बबल था वो जोर जोर से हंसने लगा. खिलखिला के, शुक एंड शुक मतलब जैसे खिलखिलाकर हंसते हैं. जब हम हंसते हैं जोर जोर से तो कैसे हमारा पेट भी हिलता है, हमारी पूरी बॉडी भी हिलने लग जाती है. तो उसी तरह से वो भी जोर जोर से हंसने लगा. और क्या हुआ? वो जो बबल था, वो बबल तो वैसे भी कितना हल्का सा होता है. आपने देखा जब आप बबल को ब्लो करते हो तो वो थोड़ी देर के बाद अपने आप ही
बस्ट हो जाता है एयर प्रेशर से, हवा के जोर से, है ना। तो वो भी ऐसे जब वो जोर जोर से हंसा खिलखिलाकर, तो वो अपने ही प्रेशर से फट गया। ठीक है, तो दिस वाज द स्टोरी। नाउ आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज नेम द 3 फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 3 फ्रेंड्स। तो अब आपको मुझे बताना है कि 3 फ्रेंड्स कौन कौन से थे। टेल मी, हु आर द 3 फ्रेंड्स? Yes, you are right. 3 friends are the bubble, the straw, and the shoe. Yes, good. Where did they go one day? Where did they go one day? They all, yes, tell me. Yes, at one day they कहाँ गए थे वो एक दिन? फॉरेस्ट में, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे? They all went to the forest one day. They all went to the forest one day. Yes, good. What did they want to do? वो वहाँ क्या करना चाहते थे? क्या करना चाहते थे? जब वो फॉरेस्ट में गए थे फिर क्या हुआ? तो वहाँ पर वो एक रिवर को क्या करना चाहते थे? क्रॉस। यस, गुड। तो वो एक रिवर को क्रॉस करना चाहते थे, तो हम लिखेंगे दे want to cross the river. They want to cross the river. Yes, good. Now next question is how do you make bubble? आप बबल कैसे बनाएंगे? कैसे बनाते हो? आपने कभी घर में बबल बनाए? Yes, good. कैसे बनाए हैं? With the help of, yes, yes, right, soap. With the help of soap. तो आप क्या लिखेंगे? I make the bubble with the soap water. With the soap water. Good. Next question is what do you wear on your feet? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे बताएंगे आप? आप क्या पहनते हैं अपने पैरों में? वो पूछ रहा है आप अपने पैरों में क्या पहनते हैं। तो क्या पहनते हैं आप अपने पैरों में? यस, यू आर राइट, शूज। क्या पहनते हैं? शू। तो हम कैसे लिखेंगे? आई वियर शू ऑन माई फीट। आई वियर शू ऑन माई फीट। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू क्रॉस अ रिवर? हाउ वुड यू क्रॉस अ रिवर? अगर आप वहाँ जाते हैं, गंगा जी में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तो आप रिवर जब आती है तो उसको कैसे क्रॉस करते हैं? Yes, tell me. Yes, you are right. With the help of bridge, है ना। तो हम लिखेंगे I will cross the river with the help of bridge, है ना। हम तो पुल के ऊपर से ही जाते हैं ना, ब्रिज मीन्स पुल। तो हम तो पुल के ऊपर से ही रिवर क्रॉस करते हैं। कोई हम स्ट्रॉ को थोड़ी ना बोलेंगे कि आप स्ट्रेच हो जाओ तो हम क्रॉस करेंगे, है ना। तो दैट इज द स्टोरी। तो हम तो ब्रिज को क्रॉस करके ही रिवर क्रॉस करेंगे, है ना। गुड। तो दीज आर सम क्वेश्चंस, और यही क्वेश्चंस मैंने आपको वर्कशीट में भी करने के लिए दिए हैं। ओके, नाउ हियर इज सम fill-ups. Fill in the blanks. Put these doing words in the sentence. The first filling the blank is the straw dash himself from one bank to the another. तो straw ने क्या किया था? नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे में straw ने क्या किया था? इन words में से jumped, shook, stretched and burst. तो straw ने क्या किया था? stretch, अपने आप को stretched किया था। तो यहाँ हम लिखेंगे stretched himself from one bank to the other. Next is the shoe dash on the straw. shoe ने straw के ऊपर क्या किया था? जब straw ने अपने आप को नदी में ऐसे stretch किया था, तो shoe सबसे पहले shoe ने बोला था ना कि मैं क्रॉस करूंगा। तो shoe ने क्या किया था? straw के ऊपर jump, shook, stretch और burst। क्या किया था? Yes, good, jumped. तो हम यहाँ पर लिखेंगे jumped. Okay. Number 3 is the bubble dash and dash with laughter. और जब शू ने उस पर जंप किया और शू जो था वो वाटर में गिर गया, बहुत जोर से, फेल इन द वाटर, है ना। तो बबल ने क्या किया? यहाँ पर क्या आएगा? जंप्ड, शुक, स्ट्रेच्ड और बर्स्ट। शुक, है ना, वो खिलखिला के हंसने लगा था ना। द बबल शुक एंड शुक
with laughter, है ना, and dash with a big bang. तो क्या, एंड फिर क्या हुआ था, जब वो खिलखिला के हंसा था तो क्या हुआ, लास्ट में burst with a bang. तो यहाँ पर आएगा burst. तो these are the questions and these are the fill-ups. You will do in your notebook also. Okay? तो ये आपका वर्क है. अब आपको इसी बुक में भी आपका कुछ वर्क है जो आपको ट्रेसिंग करना है. लाइक ट्रेस द जर्नी ऑफ अ टैडपॉल. यहाँ टैडपॉल की जर्नी दी है. टैडपॉल्स होते हैं छोटे छोटे फ्रॉग के जो बेबी होते हैं, उनको टैडपॉल बोलते हैं. तो हम यहाँ से इस डॉटेड लाइन को स्टार्ट करेंगे. पर्डल से यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर हम ऐसे राउंड करेंगे पॉन्ड में, देन गो टू लेक, फिर लेक से राउंड करके लास्ट में रिवर में फ्रॉग आ जाएगा. नाउ आई एम फ्रॉग. टैडपॉल से स्टार्ट हुआ, फिर पॉन्ड में, पॉन्ड से फिर लेक में, लेक से फिर जब वो रिवर में पहुंचा तो ही बिकम अ फ्रॉग. ओके, नेक्स्ट इसी तरह से आपको ये वाली एक्सरसाइज भी करनी है. इसमें क्या है, ड्रॉ द बबल, ट्रेस एंड से द लेटर लाउड. यहाँ पर आपको कुछ बबल्स दिखाई दे रहे हैं लाइक दिस. तो जो ये डॉटेड लाइन है, आपको इस डॉटेड लाइन के ऊपर, इस डॉटेड लाइन के ऊपर इस तरह से ड्रॉ करना है लाइक दिस. ओके, इसी तरह से आपको अंदर भी ये जो लेटर है इसको ट्रेस करना है लाइक दिस, और आपको इसको लाउड बोलना है कि आपने कौन सा लेटर ट्रेस किया है. तो फर्स्ट आई विल ट्रेस लेटर ए. इसी तरह से यहाँ पर आपको पहले बबल, बाहर से आउटसाइड में आपको पहले बबल को ड्रॉ करना है, ट्रेस करना है इन डॉट्स पे, और फिर अंदर लेटर को ट्रेस करना है, और फिर आपको लेटर बोलना है ज़ोर से. ठीक है, एक एक्टिविटी आपकी इस पेज की है. सेकंड यहाँ पर पेज है आपका, इसमें क्या लिखा है, मैच द बॉल्स विद देयर नंबर्स, नाउ ट्रेस द नंबर्स. ओके, यहाँ पर नंबर्स दिए हैं. ठीक है, तो आपको इन बॉल्स को काउंट करना है. 1 2 3 4 5 6 7. नाउ यू विल सर्च 7 हेयर. तो 7 इज हेयर. तो यू विल ट्रेस द नंबर एंड देन यू विल मैच विद दिस नंबर. ओके, now 1 2 3 4 5 6 7 8. So here is 8. You will trace the 8 like this and then you will match the number like this. Okay, this was your second activity. And this activity, this is a activity based. Okay, you will take a 1 tub of water. आप पानी का एक टब लेंगे. You will put some things, these things in that. यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हैं, आप ये चीज़ें उस पानी के टब में डालेंगे, और फिर आप क्या देखेंगे, जैसे फर्स्ट है रिबन. अगर आपने रिबन को उस पानी के टब में डाला तो दैट व्हाट विल हैपन, इट विल फ्लोट और इट विल सिंक. सिंक मतलब डूबना, फ्लोट मीन्स तैरना, फ्लोट मीन्स तैरना एंड सिंक मीन्स डूबना. ठीक है, तो अगर आपने रिबन को पानी के टब में डाला तो आप क्या देखेंगे कि रिबन तो हल्का होता है, तो इट विल फ्लोट, ये तैरने लगेगा. इसी तरह से आप फैदर लेंगे, कोई पंख लेंगे किसी पक्षी का, उसको भी उस टब में डालेंगे, तो फिर आप एक्टिविटी देखेंगे कि वो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, या सिंक या डूब रहा है. इसी तरह से मार्बल है. मार्बल लोगे तो आप देखोगे कि मार्बल क्या करेगा, फ्लोट करेगा, सिंक करेगा, बट मार्बल जो है वो सिंक करेगा, वो डूब जाएगा, क्योंकि उसका वेट पानी के वेट से ज़्यादा है. इसी तरह से आप लीफ लोगे तो लीफ को भी ऐसे ही देखोगे कि वो पानी में डूबा है या तैर रहा है. स्टोन में आप देखेंगे, जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो आप सब चीज़ों के नाम नोट करोगे कि कौन सी चीज़ फ्लोट की है. एक तरफ आप फ्लोट लिखोगे, दूसरी तरफ आप सिंक लिखोगे. ठीक है, जो चीज़, जो भी इनमें से जो भी थिंग फ्लोट करेगी उसको आप फ्लोट के नीचे लिखोगे, और जो डूबेगी, जो सिंक करेगी, उसको सिंक के नीचे लिखोगे. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर अदर एक्टिविटी. और लास्ट में ये आपकी कलरिंग एक्टिविटी है. ड्रॉ द बेल, कलर इट एंड से द राइम लाउड. आपको यहाँ पर ये बेल दी है ड्रॉ करने को, और यहाँ पर जो डॉट्स हैं इनके ऊपर आपको इस तरह से ट्रेस करना है. इस बेल पे, बेल को ड्रॉ करना है पूरा. ये बेल है, पूरा कुआं बना है, इसके ऊपर आपको ड्रॉ करना है लाइक दिस, इन डॉट्स के ऊपर, और फिर इसको कलर करना है. और आप कौन सी राइम को सिंग करेंगे, A bell fell in the well. A bell fell in the well. A bell fell in the well.
Ding dong bell. A bell fell, a bell fell in the well. Ding dong bell. So this is your activity in the book, and the in worksheet you will do these question answers, and these are the fill ups. Okay students, thank you and have a good day.